Greetings 12th class political science students, welcome back to our channel. Hope you all are doing great. Today we are going to do third part of the continuous chapter that we have started, in which basically we have studied restoration of Congress, right? So today we are going to discuss the subtopic that is 4th general elections 1967. Till now, we have completed 2 parts, and in those 2 parts, we have understood the position of Congress, situation of Congress. After the death of Pandit Jawaharlal Nehru, we have seen that there were confusions, there were a lot of challenges in front of Congress, that who will lead the party. But we got a marvelous leader in the form of Lal Bahadur Shastri. But again, the same question was there in front of us, in front of Congress party in 1966. Why is it was? Because at that time, while there was the agreement, Tashkent agreement, so at the same place, Lal Bahadur Shastri passed away, right? But we have seen the strong leadership of Indira Gandhi also, and today we are going to study what was her role, basically in 4th general election. What was the position of Congress at that particular time period, right? So let us understand what is the position of Congress in this particular phase of time period, right? So 4th general election 1967. The year 1967 is considered as a landmark year in the Indian political and electoral history. ये बड़ा एक landmark year है इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इलेक्टोरल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. In chapter 2, you read about how the Congress party was the dominant political force throughout the country from 1952 onwards. आप लोगों ने वन पार्टी डोमिनेंस एरा चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है, और आप लोगों ने बड़े अच्छे से ये भी समझ लिया था कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो क्या कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी, है ना. स्टार्टिंग के इलेक्शन से लेके, मतलब 1952 के फर्स्ट जनरल इलेक्शन से लेके 1967 तक. This trend was to undergo significant changes with the 1967 elections. लेकिन अब क्यों इंपॉर्टेंट है 4th जनरल इलेक्शन? क्योंकि यहाँ से जो चलने वाली प्रोसेस थी ना, कि कांग्रेस ही लीड कर रही थी, कांग्रेस ही हर एक पार्ट पे गवर्नमेंट फ्रेम कर रही थी, अब यहाँ से ये सिनेरियो, ये सीक्वेंस कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है. अब क्या चेंजेस हुए हमारे इलेक्शंस में? सो लेट अस कम ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द इलेक्शंस. यहाँ पे क्या हुआ? In the years leading up to the 4th general elections, the country witnessed major changes. क्योंकि हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंट चेंजेस आए. आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में, कि ये वो टाइम पीरियड था जहां कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक टाइप से धक्का लगता है ना. जब हमने पढ़ा था कि कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनती है केरला में, है ना. तो अब देखो क्या है, 2 प्राइम मिनिस्टर हैड डाइड इन क्विक सक्सेशन. अब देखो क्यों हुआ ऐसा, जो चेंजेस आ रहे थे बेसिकली, उसका चेंज का रीजन क्या था? बेसिक रीजन वाज द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ आवर कंट्री, है ना. क्योंकि बहुत जल्दी हमने हमारे 2 बहुत अच्छे लीडर्स को लूज कर दिया था, राइट. उसके बाद क्या हुआ? एंड द न्यू प्राइम मिनिस्टर हु वाज बीइंग सीन एज अ पॉलिटिकल नोविस हैड बीन इन ऑफिस फॉर लेस देन अ ईयर. अब देखो क्या था, जो हमारी नई प्राइम मिनिस्टर थी, हु वाज शी वाज अ फीमेल, इंदिरा गांधी, है ना. तो अब देखो क्या हुआ, वो बिल्कुल न्यू थी. और नोविस मतलब क्या होता है? जिसने नया कोई काम करना सीखा एक टाइप से, है ना. Although she was having experience in the cabinet of Lal Bahadur Shastri during the freedom struggle also, but even then for the authority of prime minister she was completely new, और बिल्कुल less than a year का उनका experience था, है ना. क्योंकि 1966 में डेथ हुई थी, passed away, है ना. लाल बहादुर शास्त्री जी passed away. तो उसके बाद क्या हुआ, सक्सेशन कहीं ना कहीं टुक ओवर किया किसने? इंदिरा गांधी जी ने. लेकिन अब उनको 1 साल भी नहीं हुआ तो क्या हो गया, हमारी कंट्री में इलेक्शंस आ गए, 4th जनरल इलेक्शन. You will recall from the discussion in chapter 3 and in the previous section of this chapter that the period was fraught with grave economic crisis resulting from successive failure of the monsoon, widespread drought, decline in agricultural production. अब ये सारी चीजें आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो. हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, प्लान डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, है ना. तो ये जो टाइम पीरियड था, बेसिकली ये जो टाइम पीरियड इसलिए भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि हमारी कंट्री में सिर्फ यही एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब हमारे लीडर्स को हम लूज कर रहे थे बहुत जल्दी, सिर्फ यही एक इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है,
बल्कि कंट्री और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ फेस कर रही है। सीरीज ऑफ प्रॉब्लम इज देयर। कैसे कि जैसे हमारे यहां मॉनसून फेल हो गया, ड्रॉट क्या हो गया, वाइड स्प्रेड ड्रॉट है, मतलब सारी जगह मतलब सूखा पड़ गया। अगर देखो मॉनसून फेल हो गया तो हमारी कंट्री को ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इट इज अ गैम्बल विद मॉनसून। तो अगर मॉनसून फेल हो गया तो इट मीन्स कंट्री में प्रॉब्लम्स आएंगी, ड्रॉट्स आएंगे, राइट। अगर अच्छी क्रॉप नहीं होगी तो स्टार्विंग होगी, स्टार्वेशन होगी, भूख से लोगों की डेथ भी होगी, है ना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में क्या होगा, डिक्लाइन होगा, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर तभी अच्छी होती थी जब मॉनसून अच्छा होता था। लेकिन उस साल क्या हो रहा था, ड्रॉट्स आए, ड्रॉट्स पड़े क्योंकि लैक ऑफ रेन की वजह से, राइट। इसकी वजह से सीरियस फूड शॉर्टेज, और इसने हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम अराइज करवाई कि हमारे यहाँ एक्यूट शॉर्टेज अराइज हो गई फूड की। और उसके बाद डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसका भी डिप्लेशन हुआ, मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं कमी ही हुई। ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो हम इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे थे उस प्रोडक्शन में भी कमी आई। और अगर हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि देखो प्रोडक्शन के लिए आपको इनपुट्स लगाने पड़ते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको इनपुट्स डाल लेने और आपको जस्ट आउटपुट मिल रहा है। दैट्स नेवर पॉसिबल इन एनी पोजिशन, इन एनी एक्शन, कभी भी पॉसिबल नहीं होती चीजें। तो इंडस्ट्रीज में जब हमारे पास इनपुट्स लगाने के लिए मनी नहीं थी तो आउटपुट कहां से निकलता। तो जब हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था ही नहीं, खुद के लिए नहीं था, तो हम एक्सपोर्ट कैसे करते, राइट। कंबाइंड विद अ शार्प राइज इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसके साथ क्या हो रहा था, कंट्री में तो शॉर्टेज है इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, और उसके अलावा जो रिसोर्सेज हमारे पास थे भी वो कंट्री के कहाँ यूज हो रहे थे, हमारी कंट्री की मिलिट्री के ऊपर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर, है ना। क्योंकि क्या हो रहा था, जो हम क्या कर रहे थे, प्लान के साथ, डेवलपमेंट के साथ कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, मिलिट्री की चीजें, मिलिट्री की नीड्स को फुलफिल कर रहे थे, है ना। और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी हो रही थी क्योंकि हम अच्छी जो पॉलिसीज थी वो प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर पा रही थी, राइट। क्यों नहीं वर्क कर पा रही थी, क्योंकि सारी की सारी चीजें चेंज होती जा रही थी, है ना। प्लान्स हमारे चेंज होते जा रहे थे, प्रॉब्लम्स वाज क्रिटिकल यू कैन से। So one of the first decision of the Indira Gandhi government was to devaluate the Indian rupee. अब देखो क्या था, हमारी जो गवर्नमेंट का फर्स्ट डिसीजन था वो क्या था, हमारी कंट्री की जो करेंसी है, क्या है हमारी कंट्री की करेंसी, जो हमारी कंट्री की करेंसी है रुपी, उसको क्या करना था, डीवैल्यूएट। डीवैल्यूएट का मतलब, डीवैल्यूएट मीन्स क्या होता है, डीवैल्यूएट का मतलब कि कहीं ना कहीं एक टाइप से क्या कर दो, क्योंकि देखो अगर अब देखो क्या था कि उसकी जो कॉस्ट है ना, आप उसको कहीं ना कहीं क्या कर दो, थोड़ा कम कर दो। इसका मतलब क्या होगा, अगर कम करोगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी थी। तो उन्होंने देखो पहले क्या किया, फर्स्ट डिसीजन यही लिया, अंडर व्हाट वाज सीन टू बी प्रेशर फ्रॉम द यूएस। और ये किस वजह से हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस का प्रेशर था हमारे ऊपर। अर्लियर $1 शुड बी परचेज्ड फॉर लेस देन 5, बट आफ्टर डिवैल्यूएशन इट कॉस्ट मोर देन 7। मतलब हमारी मनी, हमारी करेंसी की वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो गई, राइट। और ये बेसिकली कहीं ना कहीं यूएस का प्रेशर भी आप कंसीडर कर सकते हो। और बेसिकली हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोग क्या चाह रहे थे कि कंट्री की इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है हमारी कंट्री की, हम कहीं ना कहीं उसको क्या करें, उसको कंट्रोल करना था, राइट। सो व्हाट डिड वी ट्राई टू डू, इसीलिए हम लोगों ने अपनी मनी का डिवैल्यूएशन कर दिया। और इस वजह से देखो फिर क्या हुआ, जो पहले हमारी कंट्री जो एक, अगर आप बात करते हो $1 की, दैट वाज इक्वल टू 5 रुपीज, लेकिन डिवैल्यूएशन के बाद क्या हो गया, उसकी वैल्यू 7 रुपीज से ज्यादा हो गई, राइट। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड of price rise, people started protesting against the increase in the price of essential commodities, food scarcity, growing unemployment and the overall economic condition in the country. अब उसके अलावा भी क्या हो गया कि अब देखो ये तो हो ही रहा है, हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और हमारी कंट्री में जो कमोडिटीज हैं, एसेंशियल कमोडिटीज है, रिक्वायर्ड कमोडिटीज हैं, उनके प्राइसेस हाई होते जा रहे हैं, राइट। जो हमारी जो जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं, क्योंकि लोगों ने फिर क्या करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, राइट। क्यों, क्योंकि प्राइस में क्या हो रहा थी, ग्रोथ हो रही थी, ओके। तो इसकी वजह से देखो फूड स्कार्सिटी और जो हमारी कंट्री की ग्रोइंग पॉपुलेशन थी उसकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही थी,
राइट। तो अब देखो प्रॉब्लम होंगी ही होंगी, क्यों? क्योंकि लोगों की नीड्स तो फुलफिल होंगी ही नहीं, है ना। तो इसीलिए हमारी कंट्री के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ओके, तो अब देखो क्या हुआ कि इसकी वजह से बंद एंड हड़ताल्स, अब देखो बंद वगैरह लगाना मतलब बंद की आप किसी वर्क को बंद कर देते हो, एंड हड़ताल मतलब ये एक टाइप से कि जब स्ट्राइक होती है, वर कॉल्ड फ्रीक्वेंटली अक्रॉस द कंट्री। प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, तो क्या वे था? डेमोक्रेटिक वे में ही करना है ना, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हड़ताल बंद ये सारी जगह पे फ्रीक्वेंटली मतलब इजीली देखने को मिल रहे हैं। द गवर्नमेंट सो द प्रोटेस्ट एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अब देखो गवर्नमेंट को क्या फील हुआ? गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि ये जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है ना, एंड नॉट इज एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम। मतलब गवर्नमेंट ने देखा कि जो प्रोटेस्ट है ये क्या है? एज द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, उन्होंने उस चीज पर फोकस ही नहीं किया कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एक्सप्रेशन लोगों की प्रॉब्लम का। उन्होंने इसको फील ही नहीं किया। उन्होंने फील ये किया कि क्या है हमारी कंट्री में लोग, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है कि लोग हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट एक्चुअल कंडीशन क्या थी? एक्चुअल कंडीशन ये थी कि हमारी कंट्री के लोग अपनी प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे और इस बात को अंडरस्टैंड नहीं किया गवर्नमेंट ने। सो दिस फर्दर इंक्रीज्ड पब्लिक बिटरनेस एंड रेनफोर्स्ड पॉपुलर अनरेस्ट। अब देखो क्या होगा, अब गवर्नमेंट हम बना क्यों रहे हैं भाई? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई डिड वी अडॉप्ट इट? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हो, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए बेनिफिशियल डिसीजंस ले। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हमारी गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है, वो तो ऐसा सोच रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, राइट। इसीलिए उस टाइम पे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी दैट वाज कांग्रेस, तो उसके अगेंस्ट क्या हुआ? लोगों के अंदर बिटरनेस इंक्रीज हो गई। अब देखो क्या होगा, अगर कोई आपकी बात ही नहीं सुन रहा है तो ऑफकोर्स बिटरनेस इंक्रीज होती है। अब आप स्कूल में ही हो, आपके टीचर्स आपकी बात नहीं सुनते हैं, कोई एक टीचर है जो आपकी बात सुनता ही नहीं है, तो आप क्या कहोगे? बिटरनेस इंक्रीज होती है ना। आपके और उस टीचर के रिलेशन कभी अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। तो द सेम थिंग वाज विद आवर कंट्री ऑल्सो। लोगों ने क्या फील करना शुरू कर दिया कि ये गवर्नमेंट है, ये हमारी प्रॉब्लम्स को सुन ही नहीं रही है। तो लोगों में बिटरनेस मतलब कड़वाहट इंक्रीज हो गई गवर्नमेंट के लिए, और इसकी वजह से क्या हुआ? पॉपुलर अनरेस्ट, क्योंकि लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, हमारी करेंसी की वैल्यू डीवैल्यूएट हो रही है। तो इसने क्या कर दिया? पूरी की पूरी कंट्री में कहीं ना कहीं क्या कर दिया? एक ऐसा सिस्टम अराइज करवाया कि जिसकी वजह से पॉपुलर अनरेस्ट अराइज हो गया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ? द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टीज लॉन्च स्ट्रगल फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। अब जो पार्टीज जो इन आइडियोलॉजीज को फॉलो करती हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज को, सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज को, वो तो ऐसा एक्सेप्ट करेंगी ही नहीं, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी तो हमेशा क्या होती है कि रिसोर्सेज इस वे में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कि सभी की नीड्स फुलफिल हो। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? स्ट्रगल करने शुरू कर दिए। फॉर व्हाट? फॉर ग्रेट इक्वालिटी। You will read in the next chapter about how a group of communists who separated from the Communist Party of India, वो हम लोगों ने पढ़ा था ना, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कम्युनिस्ट पार्टी में पार्टीशन हुआ था, है ना। वो किस बिहाफ पे हुआ था कि कुछ चाइना को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ क्या कर रहे थे? कुछ सपोर्ट कर रहे थे रशिया को, यूएसएसआर वाले ग्रुप को। तो फिर क्या हो गया था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट वाज डिवाइडेड, सेपरेटेड इनटू टू पार्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, है ना। इसलिए देखो फिर क्या हुआ, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी हु सेपरेटेड फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट टू फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लेड आर्म्ड एग्रेरियन स्ट्रगल एंड ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट्स एजिटेशन। अब देखो ये वाले कौन से थे? आप लोगों ने लेनिन का नेम ऑलरेडी सुना होगा, 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, हालांकि आपको भी याद नहीं होगा, आई नो। तो देखो क्या था, उन्होंने रशिया में जो रेवोल्यूशन करवाया था, उसके बाद जो सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ, तो उस सिस्टम की वजह से ना रशिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो गई थी। तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ? उसका इंपैक्ट ये हुआ कि हमारी कंट्री के लोगों ने उन्हीं आइडियोलॉजीज के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया और लोगों को क्या करना शुरू कर दिया? अग्रेरियन स्ट्रगल करवाने शुरू कर दिए, पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ? दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड सम ऑफ द वर्स्ट हिंदू मुस्लिम रायट्स सिंस इंडिपेंडेंस। और ये वही टाइम पीरियड था। अब देखो क्या है, प्रॉब्लम्स हैं कंट्री में, सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा है, तो लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं ब्लेम भी करेंगे, और उस ब्लेम के चक्कर में क्या होगा कि हिंदू मुस्लिम के बीच में भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, अभी दोबारा से फिर कन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए, राइट। इट मीन्स इस
सिस्टम से आपको क्या समझ आया? यहां आपको ये समझ आया, क्या समझ आया? यहां आपको ये समझ आया कि कांग्रेस की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं थोड़ी वीक होती चली गई। अब नॉन कांग्रेसिज्म वो क्या थी? अब आपने ऊपर वाला स्ट्रक्चर समझ लिया कि कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी थी वो कहीं ना कहीं वीक होती जा रही थी। अब फिर क्या हुआ? इसकी वजह से जो पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी वो किसकी? नॉन कांग्रेसिज्म की, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, राइट। तो क्योंकि लोगों के पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस है ना, तो उन ऑप्शंस में वो क्या करेंगे? ऑप्शंस में वो नॉन कांग्रेस पार्टीज के साथ जाएंगे, राइट। सो दिस सिचुएशन कुड नॉट हैव रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स इन द कंट्री। तो जो कांग्रेस की पोजीशन थी, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी, जो कांग्रेस का माइंडसेट था, तो भी हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स को डेफिनेटली अफेक्ट करेगी। क्योंकि देखो भाई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप रूल पे बैठे हो, इट डजंट मीन कि आपके पास सारी पावर्स हैं। लोगों ने आपको उस पावर पे बिठाया है, राइट, एंड दे कैन स्नैच एनी टाइम दैट पावर फ्रॉम यू, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स सुप्रीम पावर किसकी है? हमारी कंट्री के सिटीजन्स की, राइट। तो हमारी पॉलिटिक्स भी अब उससे अनटच नहीं थी, आइसोलेटेड नहीं थी। तो अब देखो क्या हुआ, अपोजिशन पार्टी वर इन द फोर फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट। अब उनको क्या मिला? अब देखो, अगर गवर्नमेंट वर्क नहीं करती है, सो इट्स अ वेरी बेटर और यू कैन से वेरी बेटर चांस किसके लिए? अपोजिशन के लिए, कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो पार्टीज अपोज टू कांग्रेस रियलाइज दैट द डिवीजन ऑफ देयर वोट्स केप्ट द कांग्रेस इन द पावर। और उन लोगों को क्या समझ आया कि वो क्यों पावर में नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि उनके वोट्स तो डिवाइडेड हैं, लोग डिवाइडेड हो जाते हैं, और इसीलिए कांग्रेस उस चीज का बेनिफिट ले लेती है और उनकी लोगों की वोट डिवाइड हो जाती हैं, है ना। क्योंकि हमारा अपोजिशन डिवाइडेड है, तो अगर आपको कांग्रेस को डिफीट करना तो यूनाइट होकर वर्क करना पड़ेगा, right? So thus parties that were entirely different and disparate in their programs and ideology got together to form anti-Congress front in some states and entered into electoral adjustments of sharing seats in others. अब देखो यहाँ कहीं ना कहीं, अब देखो जो इंटेंशन ये नहीं था कि हमें कहीं ना कहीं हमारी पूरी की पूरी कंट्री की सिचुएशन को एक्चुअल में हमें रिफॉर्म्स लेके आने हैं, बट एक्चुअल पोजीशन क्या थी? उन लोगों ने ये फील किया कि हम लोग पावर में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। हम लोग पावर में इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस क्या कर पा रही है? कांग्रेस सीट्स जीतने में इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि अपोजिशन वो डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज। और अगर वो अपोजिशन पार्टी वाले कंबाइन होकर वर्क करेंगे, सो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि वो कांग्रेस को डिफीट कर देंगे। और इसीलिए अब उन लोगों ने क्या किया कि एंटी कांग्रेस फ्रंट्स बनाने शुरू कर दिए, और क्या बोला कि हम सब लोग ना भाई एक साथ हैं, बस हमें क्या करना है? कांग्रेस को डिफीट करना है। और इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, कई सारे स्टेट्स में एंटी कांग्रेस फ्रंट्स भी बनाए। और फिर क्या हुआ? एंड एंटर्ड इनटू इलेक्टोरल एडजस्टमेंट ऑफ शेयरिंग सीट्स इन अदर्स। और क्या किया? कुछ इलेक्टोरल एडजस्टमेंट भी की ताकि वो क्या कर सके, जो सीट्स थी उनको शेयर कर सके। क्योंकि देखो, अगर एक पार्टी आएगी अपोजिशन वाली तो उससे काम नहीं चलेगा। तो उन लोगों ने क्या फाइंड आउट किया कि अगर पॉलिटिक्स को आपको चलाना है तो पॉलिटिक्स कैसे चलेगी कि आप सभी को कंबाइन आना पड़ेगा, कंबाइन होना पड़ेगा, अगर आप एक्चुअल में कांग्रेस को डिफीट करना चाहते हो। और फिर उन्होंने क्या बोला कि हम एक साथ इलेक्शंस लड़ेंगे और उसके बाद सीट्स को क्या कर लेंगे? आपस में डिवाइड कर लेंगे, राइट। उसके बाद फिर मतलब सीट्स की शेयरिंग पर उनका कॉमन एग्रीमेंट हो गया। They felt that the inexperience of Indira Gandhi and the internal factionalism within the Congress provided them an opportunity to topple the Congress. और उनको ये भी पता था, क्योंकि देखो अपोजिशन वाले क्या करते हैं, they keep a strict eye on each and every action of the government. So उनको ये भी पता था कि कांग्रेस के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, फैक्शनलिज्म चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कुछ लोग हैं जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो मोरारजी देसाई जैसे लीडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं क्या चल रहा है? कांग्रेस में कहीं ना कहीं इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। और अगर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को रिप्रेजेंट करके क्या कर दो, लोगों की वोट्स को डिवाइड कर दो, तो अपोजिशन को डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो उन लोगों ने यही सोचा कि जो कांग्रेस की प्रेजेंट की पोजीशन है, इंदिरा गांधी की प्रेजेंट की सिचुएशन है, और इंदिरा गांधी के पास क्योंकि ज्यादा एक्सपीरियंस है ही नहीं, इनएक्सपीरियंस्ड है वो, तो अगर हमें क्या करें, अगर हम लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं कि जिसकी वजह से हम कांग्रेस के इंटरनल जो फैक्शनलिज्म है उससे बेनिफिट ले लें, तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू ओवरकम द कांग्रेस। सो द सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया गेव दिस स्ट्रैटेजी हिज नेम नॉन कांग्रेसिज्म।
और यही स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं नॉन कांग्रेसिज्म। मतलब नॉन कांग्रेसिज्म कुछ नहीं है, सिंपल वर्ड्स में क्या है नॉन कांग्रेसिज्म, कि जब सारी की सारी पार्टीज कंबाइन हो गई, किसके लिए, कि उनको सभी को कंबाइंड एफर्ट्स करने हैं कांग्रेस पार्टी को डिफीट करने के लिए। और इसके लिए उन लोगों ने एक टाइप से कॉमन कंसेंट भी बना ली कि हम सभी मिलकर इलेक्शंस फाइट करेंगे, और उसके बाद जो सीट्स होंगी हम उनको, जो सीट्स नहीं सीट्स, जो सीट्स होंगी उन सभी को आपस में डिवाइड कर लेंगे, कॉमन शेयरिंग होगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वी विल बी एबल टू एटलीस्ट यू कैन से वी विल बी एबल टू बाईपास द कांग्रेस। उन लोगों का माइंड यही था, और इसी स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी किसकी थी, राम मनोहर लोहिया की, और इस स्ट्रैटेजी को नेम दिया जाता है नॉन कांग्रेसिज्म। मतलब जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कांग्रेस को हराना है, कांग्रेस को बाहर करना है पावर से। He also produced a theoretical argument in its defense. Congress rule was undemocratic and opposed to the interest of ordinary poor people. अब देखो उन्होंने इस चीज को, ही आइडिया पॉपुलैरिटी गेन कैसे करेगा, क्योंकि लोग तो नहीं मानेंगे आपकी बातों को, तो आपको अट्रैक्ट करवाना पड़ेगा ना लोगों को, तो आपको कुछ ऐसी चीजें बतानी पड़ेंगी सो दैट पीपल कैन अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू, है ना, यू कैन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने यही बताया, उन्होंने कुछ थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करवाए, और क्या बोला कि जो कांग्रेस पार्टी है ना वो अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक कैसे है, क्योंकि ये कॉमन और ऑर्डिनरी पीपल के इंटरेस्ट को देख ही नहीं रही है, उसको अपोज कर रही है। Therefore, the coming together of the non-Congress parties was necessary for reclaiming democracy for the people. इसीलिए अब क्या जरूरी है, इस प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए, इस प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, नाउ इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो सारी क्या करें, वो सारी एक साथ आ जाएं और क्या करें, नॉन कांग्रेसिज्म को सपोर्ट करें। और उसके बाद ये जरूरी है, क्यों जरूरी है, इफ वी विश टू सी डेमोक्रेसी इन रियल सेंस इन आवर कंट्री। तो उस डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेमोक्रेसी को रिक्लेम करने के लिए ये पर्टिकुलर सिचुएशन रिक्वायर्ड है, राइट। सो ये था आपका नॉन कांग्रेसिज्म का कंसेप्ट, जो इन सिंपल टर्म क्या था कि कांग्रेस को डिफीट करना है बाय हुक एंड क्रुक, है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो वो पॉलिटिक्स में यही चल रहा है कि भले ही आपके आइडियाज मैच नहीं हो रहे हैं, पर आपको उनके साथ मर्ज होना है। क्यों मर्ज होना है, क्योंकि आपको कांग्रेस को डिफीट करना है ना। यही था आपका नॉन कांग्रेसिज्म। फाइन, आई होप यहां तक आपको पूरी की पूरी स्टोरी क्लियर है। आपको यह भी क्लियर है कि कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी थी वो वीक क्यों होती चली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं क्या किया, कांग्रेस ने डीवैल्यूएशन कर दिया हमारी करेंसी का। लोगों की जो डिमांड्स थी, प्रॉब्लम्स ऑलरेडी इतनी ज्यादा राइज हो चुकी थी, बट कांग्रेस वाज नॉट लुकिंग एट द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन पीपल, है ना। इसीलिए क्या फील हुआ लोगों को कि कांग्रेस नाउ इट्स नॉट अ बेटर ऑप्शन, है ना। और उस चीज का एडवांटेज कौन लेंगे, उस चीज का एडवांटेज लेंगे हमारी अपोजिशन पार्टीज। हमारी अपोजिशन पार्टी क्या करेंगी, दे विल प्रोवाइड अ नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉर कांग्रेस, जो था नॉन कांग्रेसिज्म, जिसमें वो डिफरेंट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे दैट कांग्रेस इज नॉट फेवरिंग द पुअर पीपल, और यू कैन से दोज पीपल हु आर हैविंग द नीड ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए अगर हमें कंट्री में एक्चुअल में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी है तो व्हाट विल हैव टू डू, हम सारे अपोजिशन पार्टीज को एक साथ आना पड़ेगा, अपने सारे के सारे कन्फ्लिक्ट्स को भुला के, और उसी को दिया गया नेम नॉन कांग्रेसिज्म का। अब इस नॉन कांग्रेसिज्म का इंपैक्ट क्या होगा, क्या वो जीतेंगे, क्या कांग्रेस हार जाएगी, है ना, क्या वो अट्रैक्ट कर पाएंगे लोगों के आइडियाज को, और क्या वो डिफीट कर पाएंगे इंदिरा गांधी को। All these things along with these things which is given to election in Rajasthan village, है ना, the paragraph things, all these things we will discuss in next video. Okay, I hope till here everything is completely clear to all of you. But if you are having any kind of doubts and query, feel free to ask your question in comment section. Okay, next part we will do in next video. Till then, keep learning, keep studying and stay connected. Thank you. Thanks a lot.